Okay. So today's lecture is code generation, right? So this is the last phase of compilers. After the intermediate code generation, right? We work on the code generation. So code generation actually work on the target machine, right? And before all the phases are work together and produce just for the code generations, right? So code generation is the final activity of compiler. Code generation is the process of creating assembly machine language. What is the meaning of assembly? It means the machine dependent codes, right? uh, 1 binary formats, right? That is called the machine level or assembly level codes, right? There are some properties for code generation. First is correctness, second is high quality, third efficient use of resources, target machines, right? And quick code generations, right? These are the four properties which is essential for code generations, right? First is correctness. So the meaning of correctness, each and everybody know what is the meaning of correctness. Correctness code means you define the right proper syntax. Okay, you are define logic in term of your point of view, it's correct. Code conversions regarding the compiler point of view is correct, right? That is the part of correctness. uh, Before going to in detail, right, two basic terminologies we are use: absolutely machine code and reallocated machine code. What is the difference between absolute machine code and reallocated machine code? Absolute machine codes, if you aware about the fixed memory allocation regarding to os, right? Fixed memory and variable memory allocation, that is work as a absolute machine code and the reallocatable machine code, right? Fixed allocations means you suppose you define a 5 MB space for a particular process, right? So without any problem, right? The code is acquire the 5 MB space. There is no calculation, there is no if and buts. If the space is available, the code is initially allocated at that space. But the code is not sorry, but the space is not available, or the space is available in a chunks form. Then the problem is arises. So the execution of absolute machine codes is very fast, right? A small program, right? Absolutely machine code is very useful one, but when the program length is large, so absolute machine code is not fruitful. So the new concept is come to the picture, that is called the reallocatable machine codes. Not a fixed allocation, it's a variable allocation. And when we use the variable allocation, it means we define a some address mechanism. So these concepts are related to the reallocatable machine codes, right? In this figure, there are the three main blocks. First is intermediate code generation or code optimization. What is the meaning of this part? Before the code generation, what is the required part of the compiler? That is called the intermediate code generation. Intermediate code generation, it's an important part, yeah, important phase of compiler, right? Yeah, compilation process. Clear? Code optimization and intermediate code, the output are same. Whenever we use the code optimization, the output is intermediate code. After intermediate code, we can generate the actual code or machine dependent codes, right? जिसको आप assembly language बोलते हो. Clear? In code optimization, we use the three address mechanism: quadruple, triples, postfix notations, DAG. These are the part of code optimization. After apply these or some of them, we generate a intermediate code, right? After intermediate code generation, we generate the actual machine dependent code or assembly code. You check this box, error handler and symbol table. So error handler and symbol table all attach all the phases of the compilation process. So in code generation, this is also attached with the symbol table and the error handler. Now the next part is after code generation, the assembler generate the machine dependent code. It means absolute machine code or reallocatable machine code. Absolute machine codes, it means the fixed allocation is available and the code is initialized at that particular location. And the reallocatable machine codes, it means we required, when we required the space is occupied, and after completion of the codec, that space is released by the code and we can utilize that space, right? So that is a part of reallocatable machine codes, right? Now the important thing is issue in the design of code generators, right? Whenever we generate the
code, right? After the intermediate code generation, some issues we are faced. The first issue is input to code generator. Second, target program. Third, memory management. Fourth, instruction selections. Fifth, register allocation issues. And the last is evaluations order, right? So one by one, we go through each and every part, right? Some parts are theoretical and some parts are logical. So first part is completely theoretical. In input to code generator. What is the meaning of input to code generator? The input to code generator is the intermediate code generator by the front end along with the information in the symbol table that determine the runtime address of the object code denoted by the name is intermediate representation. It means when we talking about the code generation, the intermediate code is required. Without intermediate code, we cannot generate actual assembly code or machine level dependent codes, right? Intermediate code may be represent mostly like in quadruple, triples, indirect triples, postfix, syntax tree, DAC. These are the different formats to represent the intermediate code, right? The code generation phase just process on our assumption that the input are free from all of syntax and state semantic error. It means whenever we generate the code, machine dependent code or assembly code, it means we find out each and every difficulties in previous phases. It means some errors, right? Syntactical rule, semantic rule. So we find out or correct each and everything, and after that we generate the code, right? So this is a part of input to code generator. Means after five phase, after performing the five steps of the compilation process, we generate the code, actual code or assembly code without any error like semantic error or syntactical error, right? Now, target program means the target program is the output of the code generator, right? The output may be absolute machine language, reallocatable machine language, or assembly language, right? These are the three parts. First is absolute machines, second is reallocatable machine, and third is assembly, right? So, absolute machine language as output has advantage that it can be placed in a fixed memory allocation and can be immediately executed, right? If the space is fixed, so there is no hitch to use that space. But the space is not fixed, then first we check the space is free or not, and then if the space is free, then we occupy it and then execute the code, right? So in fixed space, the main advantage that the code is immediately execute. Now next point, reallocatable machine language as an output allow subprograms and subroutines to be compiled separately. Reallocatable objects module can be linked together and loaded by the linking loader, right? But there is a added expenses for linking and loading. अगर आपने सी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा लिंकर एंड लोडर, दो वर्ड आप यूज करते हो, राइट? सो लिंकर एंड लोडर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जब हम हेडर फाइल्स यूज कर रहे हैं, राइट, या आपके पास में कुछ स्पेसिफिक आपने अपनी हेडर फाइल्स बनाई है, तो पहले वो क्या करता है? प्रोग्राम में ले जाके उनको लिंक करता है। आफ्टर लिंकिंग वो क्या करता है? उनको लोड करता है, राइट? सो जब हम प्री प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो आपको ये चीज क्लियर है, प्री प्रोसेसर्स में कंपाइलेशन नहीं होता है, राइट? बट प्री प्रोसेसर आपके पास में आपके प्रोग्राम के साथ में ऑटोमेटिकली अटैच होती है। कैसे अटैच होती है? क्योंकि वो आपके पास में लिंक है और लिंक करने के बाद में वो लोड हो जाती है, राइट? सो रिएलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग जगह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिपेंड कि हमें कहाँ पे स्पेस खाली मिल रही है। और जो हम लोगों ने पहले लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, अलग अलग स्पेस पे हमारे पास में चीजें पड़ी हैं, हम उन सारी स्पेसेस को एक साथ कैसे, यानी उन सारे डाटा को एक साथ कैसे रिलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। सो सेम एज यहाँ पे भी है, एक लिंकिंग मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ता है, राइट? वो लिंकिंग मैकेनिज्म जब हमारे पास में मेंटेन हो जाता है, तब हम इकट्ठे सारे कोड्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि लिंकिंग मैकेनिज्म हमें पता है कि पहला कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सेकंड कोड कौन सा है, थर्ड कोड कौन सा है, फोर्थ कोड कौन सा है, on the basis of linking mechanism, right? Next point is assembly language as output makes the code generator easier. We can generate symbolic instructions and use macro facility to assembler is generating code, and we need a additional assembly step after code generation, right? Actually assembly programming क्या है आपके पास में? assembly programming just like a mnemonics, right? जैसे आपने 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग करी हो तो मूव लिखते हैं, तो सम
प्री डिफाइंड कीवर्ड्स आर देयर, उनका मीनिंग हमें पहले से पता होता है, या जो हमारे पास बोर्ड हम यूज कर रहे हैं या असेंबलर्स यूज कर रहे हैं उनको उनका मीनिंग क्लियर होता है, राइट। सो उनको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले एक तरीके के निमोनिक्स जनरेट करना है, राइट। उन निमोनिक्स को स्पेसिफिक असेंबलर या जो आपके पास में बोर्ड है वो उसे आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे कोड करता है, राइट। सो असेंबली लैंग्वेज जब भी हम बात करते हैं तो ये किसके बेस पे होती है, असेंबलर बेस्ड होती है, राइट। क्लियर। सो जिस भी तरीके का हम असेंबलर यूज कर रहे होंगे उसके सपोर्टिंग एक असेंबली लैंग्वेज होगी, राइट। उस असेंबली लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे, उन इंस्ट्रक्शन सेट्स के थ्रू हम उन प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले 8085 और 8086, तो दोनों आपके पास में क्या है, असेंबलर्स हैं, लेकिन दोनों के आपके पास में इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग अलग है, राइट। क्लियर। एक में 32 होते हैं, एक में 64 होते हैं, और सब कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं और कुछ आपके पास में एडवांस फीचर्स एड ऑन होते हैं। इसको आप और सिंपली वर्ड में क्लेरिफाई कर लो, अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप P1 प्रोसेसर यूज कर रहे हो और आप इंटेल P4 यूज कर रहे हो, या फिर आप आगे का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स का डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट्स का डिफरेंस होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मैपिंग द नेम इन द सोर्स प्रोग्राम टू द एड्रेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट इज डन बाय द फ्रंट एंड एंड द कोड जनरेटर। एक्चुअल में वो प्रोग्राम हमारे मेमोरी में कहाँ एलोकेट हो रहा है, उसका एड्रेस कहाँ पे जाएगा, ये सारा काम आपके पास में किसके थ्रू होता है, जो आपके पास में कोड जनरेटर होता है वो आपके पास में इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अ नेम इन द थ्री एड्रेस statement refer to the symbol table entry of the name, then from the symbol table entry a relative address can be determined from the name. It means अगर कोड जनरेटर उसे कहीं पे भी इनिशियलाइज कर रहा है तो उसकी एंट्री वो कहाँ पे करेगा, सिंबल टेबल में करेगा, क्योंकि वो बताएगा कि ये सिंबल आपके पास में किस जगह पे किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस क्या होते हैं आपके पास में, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस इज अ बेस्ट सॉरी selecting the best instruction will improving the efficiency of the program. सपोज अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक एस्ट्रिक पार्ट है और एक प्लस पार्ट है, सो हमें ये पता है कि प्लस आपके पास में ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है इन कंपैरिजन टू एस्ट्रिक के, क्योंकि एस्ट्रिक आपके पास में एक तरीके का मॉडिफाइड वर्जन है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इंस्ट्रक्शन चूज करना होगा तो हम पहले कौन सा चूज करेंगे, प्लस वाला, और अगर पॉसिबल होगा तो इस एस्ट्रिक वाले पार्ट को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस वाले पार्ट में, राइट। यही चीज आपके पास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। So selecting the best instructions will be improve the efficiency of the program. It includes the instructions that should be complete and uniform. Instructions speed and machine idioms also play a major role when efficiency is considered. अगर हमारी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन लो है तो हम कोड को क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, राइट। सपोज अगर हम आपसे बोलते हैं कोई प्रोग्राम है जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास में 4 GB की है या 4 MB की है, और अगर हम उससे 2 MB पे रन कराएंगे, तो बट ऑब्वियस है वो कोड हमारे पास में 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफाइन होगा, राइट। और हो सकता है उस सेगमेंट को लोड और अनलोड होने में टाइम हो, और हो सकता है वो ना भी रन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें विंडो 10 इंस्टॉल करनी है तो हमें मिनिमम 4 GB रिक्वायरमेंट है, अगर 4 GB नहीं है तो हम विंडो 10 इंस्टॉल नहीं करता है, राइट। बट प्रीवियस वर्जन जो थे आपके पास में उनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, बट हम उससे कम भी रैम में उसे इंस्टॉल कर सकते थे, कहीं पे भी लॉकिंग नहीं लगी हुई थी। तो इट मीन्स हमारे पास में अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम ओल्डन डेज में जाए तो हमारे पास में 2 तरीके के मॉनिटर होते थे, कलर्ड मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर। जब हम कोड रन कराते थे तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी सी प्रोग्रामिंग में और असेंबली प्रोग्रामिंग में कि वो कोड किस पर्पस का लिखा गया है। वो अगर आपके पास में मोनोक्रोम मॉनिटर पर रन हो रहा है तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, और अगर कलर्ड पर हो रहा है तो इसका इफेक्ट अलग आएगा। तो हम हार्डवेयर कोड के थ्रू इस चीजों को हैंडल करते थे। जब भी हमारे पास में प्रोग्राम रन करते थे तो वो चेक कर लेता था आपका मॉनिटर का जो बिहेवियर है वो मोनोक्रोम है या फिर आपके पास में कलर्ड है, तो उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करता था और उसके बेसिस पे उसे एग्जीक्यूट करता था, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिस्पेक्टिव 3 एड्रेस स्टेटमेंट वुड ट्रांसलेट इनटू लेटर कोड सीक्वेंस। क्या है चीज, इसको समझते हैं, राइट। क्या पार्ट है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस का बेसिक मीनिंग क्या है। सपोज 2 इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं, P = Q+R और S = P+T। अभी हम नीचे असेंबली कोड जाने से पहले एक चीज समझें, अगर हम P = Q+R लिख रहे हैं तो इस P की जगह हम Q+R नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम Q+R+T लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ये 3 एड्रेस मैकेनिज्म से बाहर हो जाएगा। तो जब हमने इसको लिखा हुआ है तो ये 3 एड्रेस कोड पे है, राइट।
लेकिन जब हम इसको असेंबली कोड पे लिख रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास में मिनिमम रजिस्टर्स यूज हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसीलिए लिखा हुआ है रजिस्टर एलोकेशन इशू। अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ओवरहेड इंक्रीज होता जाएगा। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है आपके पास में, वो कोशिश करता है ऑप्टिमाइजेशन यूज ऑफ रजिस्टर्स, राइट। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपके पास में हमने इंस्ट्रक्शंस लिखा मूव, जो भी हमारे पास वैल्यू थी क्योंकि उसको एक R0 रजिस्टर में मूव कराया, ऐड किया R को R0 में, राइट। हम यहाँ पे एक और रजिस्टर ले सकते थे, राइट। यहाँ पे हम मूव कराते R की वैल्यू को उसके अंदर। क्लियर। सो रजिस्टर यूजेस बढ़ते जाते, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पर्टिकुलर रजिस्टर लिया जिसमें Q की वैल्यू असाइन कराई, दूसरा हमने रजिस्टर R लिया और जिसमें हमने क्या किया हुआ है, राइट, सॉरी, दूसरा हमने इंस्ट्रक्शन लिया है ऐड, और इसमें R0 में जो वैल्यू थी उसके साथ में किसको ऐड करा दिया, R को ऐड करा दिया। इट मींस Q प्लस R जो था वो किस में स्टोर हो गया आपके पास में, R0 में। अब लेकिन हमें इसे असाइन किस में करना था, P में, तो हमने फिर से मूव करा दिया P की जो भी वैल्यू थी उसको R0 में। क्लियर। नाउ अगेन फिर से हमें इस P को यहाँ पे यूज करना है, तो मूव किया P कॉमा R0। अब अगर आप ध्यान दो तो एक बार हम क्या लिख रहे हैं, मूव R0 कॉमा P, और सेकेंड टाइम में हम क्या लिख रहे हैं, मूव P कॉमा R0। तो हम अगर नॉर्मल प्रोसेस में समझें तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमारे पास में क्या है, ओवरहेड क्रिएट कर रहे हैं, रादर देन हमें सीधे ये पता है कि हमें P वैल्यू को यूज करना है, तो वो हमारे पास में किस में है, R0 में, तो हम R0 को डायरेक्टली परफॉर्म करा लें। मीनिंग क्लियर हो रहा है। सो यही चीज आपके पास में ऑप्टिमाइजेशन पार्ट में आता है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, hence the fourth statement is redundant, first second third fourth। ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है, रिडंडेंट है, as the value of p is loaded again in the statement that just have been stored in the previous statement। प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने इसको स्टोर किया और हम फिर से इसे दोबारा क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, राइट। इट लीड्स टू अ इनएफिशिएंट कोड सीक्वेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में, इनएफिशिएंट, आपके पास में इनएफिशिएंट कोड सीक्वेंस है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। So the giving intermediate representation can be translated into many code sequence with significant cost difference between the different implementation। The prior knowledge of instruction cost is needed in order to design code sequence, but accurate code information is difficult to predict। मीनिंग क्या है इसका, कि जब हम इस तरीके के कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, जो हमारे पास हम कन्वर्जन कर रहे हैं कोड से, उससे ओवरऑल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहीं पे भी डिफर नहीं करना चाहिए, राइट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास। तो अब ये चीज समझ में आई कि हम किस तरीके से डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल था, हम इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को रिमूव करके डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन एलोकेशन इशूज क्या है, अभी इसी कोड को हम लोग रजिस्टर्स पे समझेंगे। अभी हमने क्या किया, केवल एक लाइन को हटाया, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो यूज ऑफ रजिस्टर्स make the computation fast in comparison to that of memory, so efficient utilization of register is important, right। During registration allocation we select only those set of variable that will reside in register at each point in the program। इसका मीनिंग क्या है, हम उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हमेशा कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, रजिस्टर्स में स्टोर करके रखेंगे उन वैल्यूज को जिनको हमें कंटिन्यूअसली यूज करना है। अगर किसी भी प्रोग्राम को हमें फॉर अ टाइमिंग यूज करना और उसको फिर से हटा देना है तो हम इस तरीके के लिए हम कंप्लीटली वर्क यूज करेंगे, राइट। ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट रजिस्टर assessment phase the specified register is picked to access the variable, right। अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करें, तो देखते हैं, एक कोड लिखते हैं। सपोज हमने एक कोड लिखा हुआ है t इक्वल टू a प्लस बी, नेक्स्ट है t इक्वल टू t इंटू सी, नेक्स्ट है t इक्वल टू t डिवाइडेड बाई d, राइट। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमें कितने रिक्वायर्ड है। तो अगर हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करें तो देखो, इस टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो हमें इसे अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इस टी को हम यहाँ से यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें इसको अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए को स्टोर करना है, तो हमने लिखा मूव ए कॉमा R0, दैट इज असेंबली प्रोग्रामिंग। मूव इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, जो भी आपके पास वैल्यू को असाइन करना है, जैसे आप लिखते हो ए इक्वल टू 10, तो इसका मतलब यही है आपके पास में ए इक्वल टू 10, तो आप कैसे लिखोगे, मूव ए कॉमा 10, अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में लिखनी है, राइट। सो 10 मतलब आपके पास में क्या है, रजिस्टर। तो हम ए की वैल्यू को किस में स्टोर करा रहे हैं, R0 रजिस्टर में, राइट। नाउ सेम एज हमने एक दूसरा रजिस्टर लिया, सॉरी दूसरा वेरिएबल लिया, ऐड, ठीक है,
इंस्ट्रक्शन सेट ऐड हमें करना था a प्लस बी को, a की वैल्यू किस में है r0 में, और b हम लेके आ रहे हैं, इसको किसके साथ में परफॉर्म कराना था, a के साथ में, a किस में है r0 में, तो हम लिख सकते हैं b r0। इसका मतलब क्या हुआ, a और b का एडिशन किस में स्टोर हो गया, रजिस्टर r0 में स्टोर हो गया। अब अगर हम इफिशिएंट प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम दो अलग अलग अगर रजिस्टर लेते, सपोज एक r0 लेते और एक r1 लेते, देयर इज नो नीड, राइट। r0 और r1 दो रजिस्टर हमारे पास में क्या कर रहे हैं, ओवरहेड बढ़ा रहे हैं, और हमें पता है कि ये काम हम डायरेक्टली वन रजिस्टर से कर सकते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, राइट, क्लियर। और यूटिलाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास में मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी इंटू सी। अब हमें पता है टी रिजल्ट किसमें स्टोर है, टी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो टी आपके पास में किसमें स्टोर है, r0 में, और इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, सी के साथ में, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई सी इंटू r0, राइट। सो इट मींस अब जो टी की वैल्यू है वो एक्चुअल में किसमें है, r0 में है। फिर हमें क्या करना था, डिवाइड कराना, तो डिव डी कॉमा r0, नाउ मूव r0 टू t1। सो अब यहाँ पे देखो केवल टू रजिस्टर्स यूज हुए आपके पास में, एक r0 और दूसरा आपके पास में t, राइट, क्लियर। सो अगर हम इसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग में करते तो एक वेरिएबल के लिए हम एक रजिस्टर, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चार, राइट। इट मींस हम 4 रजिस्टर यूज करते हैं, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सो कोड जनरेशन इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, और जो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन। नाउ एक और एग्जांपल समझते हैं, सपोज ये ट्री दिया हुआ है, मिनिमम कितने रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो सपोज ए और बी को हमें परफॉर्म कराना है, तो बट ऑब्वियस सी बात है r0 को हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। ए को हमें r0 में स्टोर करना पड़ेगा और बी को r1 में स्टोर करना पड़ेगा, हमने दो रजिस्टर ले लिए, राइट। अब हमें पता है कि हमें माइनस परफॉर्म कराना है, तो हमें एक रजिस्टर की जो रिक्वायरमेंट है हम उसी में से इसका ऑपरेट करा दें, तो हमने क्या लिखा, r0 इक्वल टू r0 माइनस r1 हम कर सकते हैं, तो जो भी रिजल्टेंट है वो किसमें स्टोर हो गया होगा, r0 में। अब अगर हम इस केस पे देखें तो हमारे पास में एक रजिस्टर जो r1 था वो तो फ्री है ना, उसमें कोई वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं स्टोर है, बी स्टोर था उसका हम यूज कर चुके हैं, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो r1 हमारे पास में खाली है। अब अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम r1 में इसको स्टोर कर सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, r1 इक्वल टू सी, राइट, तो r1 को हमने री यूटिलाइज कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में अब हमें एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी डी। सो डी को अगर हमें रिक्वायर्ड है और हमें पता है हमारे पास में r0 भी ऑक्युपाइड है, r1 भी ऑक्युपाइड है, सो देन वी नीड अ थर्ड रजिस्टर। अब हमारे पास में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने एक नया रजिस्टर एड ऑन कर लिया r2 और इसमें डी को इनिशियलाइज करा दिया। अब हमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कराना था, तो हमें पता है कि r1 में हम ओके, सो यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ, राइट। अब R2 में हमने R1 में कौन सी वैल्यू स्टोर करा ली, C प्लस डी की, तो अब हम यहां से देखें तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर रजिस्टर खाली हो गया, दैट इज R2, राइट। सो अब हम E की वैल्यू को किस में स्टोर करा सकते हैं, R2 में, तो हमने E की वैल्यू को R2 में स्टोर करा दिया। अब जो ये था रिजल्ट, ये किस में स्टोर है, R1 में, सो हम R1 और R2 को प्लस करके फिर से R2 में स्टोर करा सकते हो, तो हमने क्या लिखा, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। अब जो ये रिजल्टेंट था वो किसमें था, R2 में, ये रिजल्टेंट किसमें था, R0 में, तो हम रिजल्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। सो देखो अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो हमें केवल कितने मैक्सिमम रजिस्टर की रिक्वायरमेंट हुई, तीन ही रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट करी, ओनली 3 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते तो हमें 6 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती, सो दैट इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस, राइट। तो रजिस्ट्रेशन एलोकेशन इशू का मीनिंग समझ में आया, ये प्रॉब्लम्स थी, राइट, और इनका सोल्यूशंस किसने दिया आपके पास में, पीपहोल ऑप्टिमाइजेशंस ने, राइट। सो क्लियर हुआ कि पीपहोल क्यों पढ़ रहे हैं, या आपके पास में जो चीजें हम लोगों ने पीछे डिस्कस करी हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या थी। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, सबसे पहले हमारे पास में एग्जैक्ट कोड हमारे पास में लोड होना चाहिए, दूसरा क्या है, आपके पास जो कोड हमने कन्वर्ट किया वो करेक्ट होना चाहिए, राइट। थर्ड पार्ट क्या था आपके पास में, उसके लिए एक्यूरेट मेमोरी हमारे पास में होनी चाहिए। फोर्थ है हमारे पास में जो हम इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, और सबसे क्रूशियल पार्ट क्या था आपके पास में, रजिस्ट्रेशन एलोकेशन, यानी वो रजिस्टर किस तरीके से एलोकेट करेगा, राइट। एंड द लास्ट पार्ट है इवैल्यूएशन ऑर्डर। तो इवैल्यूएशन ऑर्डर का मीनिंग सबको क्लियर होता है, जब भी हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो लीनियरली वे में एग्जीक्यूट होते हैं अनटिल अनलेस जब तक कि हम जंप इंस्ट्रक्शंस को यूज नहीं करें, राइट। सो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वर्क लोकली ऑन द सोर्स कोड। ये किस पे वर्क करती है, लोकल वर्क करती है, कोई भी इसका ग्लोबलाइजेशन पार्ट नहीं है, राइट।
transforms into a optimized code. By local we means the small portion of code block at the end. हम बहुत बड़े कोड को डायरेक्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मशीन, तो हम क्या करते हैं, पीस ऑफ कोड जिसको हम बेसिक ब्लॉक्स बोलते हैं, तो हर हर एक बेसिक ब्लॉक्स को हम अलग अलग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पहले समझा हुआ था, कल जब हम लोगों ने इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन समझा था, तो ये पार्ट वहीं से रिलेट करता है, राइट। लेकिन आफ्टर इंटरमीडिएट कोड हम क्या करते हैं, कोड जनरेट करते हैं। सो अगेन हम जब कोड जनरेट कर रहे हैं तो फिर से हम ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करेंगे, राइट। सो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड और इंटरमीडिएट कोड एज वेल एज द टारगेट कोड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम ये चीज ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे यूज करते हैं, इंटरमीडिएट पे भी और टारगेट कोड पे भी, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। जब हम आपसे बोलेंगे टारगेट कोड पे ऑप्टिमाइज करना है, तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं। और जब हम इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो इट मींस हम थ्री एड्रेस, क्वाड्रपल, ट्रिपल्स, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। क्लियर? नाउ अब आपके पास में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले है रिडंडेंस इंस्ट्रक्शन सेट्स को एलिमिनेट करना, अनरीचेबल कोड को, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, स्ट्रेंथ रिडक्शन हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा हुआ था आईपीसी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में, और यहाँ पे भी उस चीज को समझेंगे, एंड असाइनिंग अ मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को एक बार गो थ्रू करते जाते हैं। रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस का बेसिक मीनिंग क्या है, तो ये हाई लेवल पे बताते हैं। इस एग्जाम्पल को हाई लेवल पे कोड किया गया, और इस एग्जाम्पल को अभी जो हम लोगों ने कोड जनरेशन के फॉर्मेट में यूज किया उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला पार्ट समझते हैं। अगर हम रिडंडेंट कोड जनरेशन यूज कर रहे हैं, तो देखो आई एन टी वाई कॉमा जेड, और वाई इक्वल टू 10 है, राइट, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में वाई और जो हमने यूज किया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली तो भी यूज कर सकते हैं, जेड का कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, जेड को एलिमिनेट किया। नेक्स्ट हमें ये समझ में आ रहा है y इक्वल टू 10 की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जिसको डायरेक्टली यही इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो आई एन टी वाई इक्वल टू 10, राइट। और x प्लस वाई के लिए हमें y की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधे रिटर्न x प्लस वाई करा सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट हमें ये भी समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू फिक्स है, तो हम यहाँ पे सीधे 10 यूज कर लें। तो देखो 1 2 एंड 3 पार्ट में हमारे पास में क्या हुआ, 1 2 3 4 लाइंस थी कोड की, ये आपके पास में रिड्यूस होके केवल क्या रह गई, 1 लाइन रह गई। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिडंडेंट कोड एलिमिनेशंस, राइट। सो ये हाई लेवल पे प्रोग्रामर के साइड भी होता है, और दूसरा आपके पास में असेंबली लेवल पे भी होता है, राइट। अब असेंबली लेवल पे इस चीज को कैसे समझते हैं, तो देखो अगर आपने लिखा हुआ है मूव एक्स कॉमा आर जीरो, और फिर लिखा हुआ है मूव आर जीरो कॉमा आर वन, सो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इस आर जीरो को हमारे पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस आर जीरो को लिखने की, हम रादर देन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे एक्स लिख सकते हैं। तो देखो हमने सिंपल क्या लिखा हुआ है, मूव एक्स कॉमा आर वन। सो यही आपके पास में क्या है, रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस एलिमिनेशंस, राइट। और यही चीज अभी हम लोगों ने पीछे प्रॉब्लम में भी समझी थी। तो ये प्रॉब्लम है और यही इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं जो भी आपके पास में रिडंडेंट पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, अनरीचेबल कोड का मतलब क्या है, सपोज हमने रिटर्न लगाया और रिटर्न के नीचे प्रिंट लगाया, तो कभी आपके पास में प्रिंट में जाएगा ही नहीं। तो ये आपके पास में क्या है, अनरीचेबल कोड है। तो इस तरीके के कोड्स को हम विदाउट एनी हिच प्रोग्राम से रिमूव कर देते हैं। अगर हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट करेक्ट है, हमें पता है कि रिटर्न पहले कराना और प्रिंट एफ उसके बाद है, तो इट मींस प्रिंट एफ की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास में फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। कैसे हम लोग फ्लो करते हैं, कंट्रोल जो हमारे पास में जंप्स हो रही हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देखो अगर हम आपसे बोले एक चंक्स है, राइट, मूव R1 R2 गो टू L1, राइट, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस है, तो हमने R2 की जो भी वैल्यू है R1 में इनिशियलाइज कराई, गो टू L1, और L1 में हम फिर से क्या बोल रहे हैं, गो टू L2, L2 में नीचे आ रहा है। अब अगर हम आपसे बोले स्विच केस सबने पढ़ा हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट में क्या हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है, डिफॉल्ट में हम ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है डिफॉल्ट के बाद वो नीचे ही लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगा रहे हैं तो हम अपने प्रोग्राम में अननेसेसरी एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जो हमारे पास कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर हम L1 में गो टू L2 लिख रहे हैं, तो इट का मीनिंग क्या है, हम अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ रहा है, R1 पे यानी L2 वाले पार्ट पे आ रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पे चेंज करके L2 डायरेक्टली कर दें और इस लाइन को एलिमिनेट कर दें। तो ये हमारे पास में क्या होता है, जो सॉरी जो हमारे पास में फ्लो कंट्रोल है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की लूपिंग यूज कर रहे हैं और हो सकता है वो लूप हमारे पास में एक ही लूप में मर्ज हो जाए, फिर हमने दो डिफरेंट लूप लगाए हैं, तो हम इस तरीके के पार्ट को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, सपोज हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑपरेशंस यूज करो a प्लस प्लस रादर देन a इक्वल टू a प्लस 1,
क्यों? क्योंकि आपके पास में वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने में मिनिमम टाइम लगेगा, राइट? जब आप कोड ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते हो या जब आप हैकर और हैकर की बात करते हो, तो हम लोग बोलते हैं बिट प्रोग्रामिंग हमेशा फास्ट होती है। बिट प्रोग्रामिंग क्यों फास्ट होती है? उसका मीनिंग समझ में आता है, बिट ओरिएंटेड है, एग्जीक्यूशन हमारे पास में मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट होगा। सो ये सारी चीजें आपके पास में क्या है? कोड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। कोड ऑप्टिमाइजेशन के दो पार्ट हैं, एक आपके पास हायर लेवल पे और दूसरा मशीन लेवल पे, राइट? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमने लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस जीरो, सो कैन बी रिप्लेस बाय इटसेल्फ। इसको हम डायरेक्टली a इक्वल टू a प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली a के ही बराबर है। एक्सप्रेशन a इक्वल टू a प्लस कैन बी रिप्लेस बाय द inc, राइट? सो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू a प्लस वन की जगह a प्लस प्लस लिख सकते हैं, राइट? स्ट्रेंथ रिडक्शन का भी मीनिंग यही है। अगर हम किसी भी कोड को लिख रहे हैं a इंटू a, तो हम इसकी जगह क्या लिखें? a स्क्वायर, राइट? क्लियर? अगर हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चॉइस आती है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को हटा के एडिशन यूज कर लेंगे, क्योंकि एडिशन आपके पास में मच फास्टर है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन के। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ रिडक्शन, राइट? ऐसा मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या है? अभी हमने आपसे बोला कि अगर हमें x इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखना है, तो हम इसकी जगह क्या लिखें? ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर लें, राइट? ऑटो डिक्रीमेंट यूज कर ले। तो ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? इस कोड को एग्जीक्यूट फास्ट करेंगे, राइट? अगर हम इस एग्जीक्यूट को मशीन लेवल पे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो पहले क्या करेगा? एक एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करेगा, देन परफॉर्म करेगा, देन इनिशियलाइज करेगा। और अगर हमने इसको हमको ऑटो इंक्रीमेंट किया है, तो ये डायरेक्टली रजिस्टर में अपने आप असाइन हो जाएगा। क्लियर? सो ये पार्ट था आपके पास में पीपल ऑप्टिमाइजेशन, राइट? लास्ट टॉपिक है आपके पास में बैक पैचिंग। बैक पैचिंग हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहले इस चीज को समझो। इट इज द एक्टिविटी इफ फिलिंग अप अनस्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लेबल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट सिमेंटिक एक्शन इन ड्यूरिंग द कोड जनरेशन फेज। कोड जनरेशन फेज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? सो जब हम थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास में बहुत सारे लेबल्स जनरेट हो जाते हैं। गो टू कहाँ पे जाए, वाइल कंडीशन है, इफ कंडीशन है, केस स्टेटमेंट्स है। सो हमें इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने की या इन चीजों को स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। सो अनस्पेसिफाइड जो वैल्यूज हैं, उनको हम कैसे फिल करें? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक बैक पैच का कॉन्सेप्ट होता है। बैक पैच कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारे पास में जो एग्जीक्यूशन हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। अगर हमारे पास इस एग्जाम्पल को लें, a इज लेस देन b और c इज लेस देन d एंड p इज लेस देन q, तो सबसे पहले हमारे पास में कौन से ऑपरेशन यूज होंगे? जो हमारे पास ब्रैकेट्स में है, सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है। तो हमने इसको t1 t2 t3 के फॉर्म में कैटेगराइज कर लिया। जब ये तीनों ऑपरेशन सेपरेटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो फिर कौन सा ऑपरेशन यूज होगा? एंड की प्रायोरिटीज ज्यादा होती है, तो पहले एंड एग्जीक्यूट होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे t4 लिखा हुआ है। और जब एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा आपके पास में? t1 और t4 एग्जीक्यूट होगा, तो इसका रिजल्टेंट पार्ट हमने t5 लिखा हुआ है। बैक पैच का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो रिजल्टेंट है और जो नेक्स्ट कॉर्डेपल आएगा। कॉर्डेपल सबको मीनिंग क्लियर है? कॉर्डेपल हम लोगों का इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का पार्ट था। अब इस चीज को समझते हैं कि अब सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का हमने थ्री एड्रेस कोड लिख दिया है, राइट? 10 का मतलब क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है और अगर कंडीशन फॉल्स है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया? इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया। तो ए बी और लेस देन सिंबल है, राइट? इसी तरीके से T2 को, इसी तरीके से T3 को, राइट? एक हमने ट्री फॉर्मेट में बना लिया। इसके बाद एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर इसके बाद और परफॉर्म होगा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? अब हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो देखो, अगर हम T1 की बात करें, तो T1 कंडीशन ट्रू किस लाइन नंबर पे है? 10 के लिए, राइट? और फॉल्स किस पे है? 11 पे, देखो, राइट? सो t इक्वल टू 10 पे ट्रू है, फॉल्स किस पे है? 11 पे। तो t इक्वल टू 10 है और f इक्वल टू 11 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने T2 के लिए और T3 के लिए, तो T1 T2 T3 के लिए हमारे पास सबको क्लियर है। 12 13 14 15, तो यहाँ पे 10 11, यहाँ पे 12 13, यहाँ पे 14 15, राइट? तो ये पार्ट हमने डायरेक्टली फिल कर लिया। यहाँ पे कोई बैक पैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैक पैच की रिक्वायरमेंट कब होती है? इस चीज को समझो, राइट? अगर हम आपसे बोलते हैं हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, दिस वन, राइट? अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो इट मींस हमें इसके बीच में एंड टेबल को एग्जीक्यूट करना होगा। सो एंड टेबल का मतलब क्या हो गया? 0 0, राइट? और अगर आपके पास में एक भी कंडीशन आपके पास में क्या है, अगर फॉल्स है, तो आपके पास आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू होगा। तो अब ध्यान दो, अगर T2 को हम चेक करें, T2 इज द फर्स्ट इनपुट एंड T3 इज द सेकंड इनपुट। तो फर्स्ट इनपुट में अगर 0 0 आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि रिजल्ट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर पहला पार्ट का इनपुट आपके पास में 1 आ रहा है, सो अब हमारे पास में कंफ्यूजन है कि 0 आएगा कि 1 आएगा। सो ये 0 एंड 1 किस पे डिसाइड है? T3 की वैल्यू पे। यानी अगर हम आउटपुट फॉल्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आउटपुट ट्रू है, राइट, यानी T2 ट्रू है, तो हमें T3 की वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा। यही बैक पैच कहलाता है कि अब हमें क्या करना है?
फॉल्स एंड ट्रू के करस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को चेक करना है। तो कैसे इस वैल्यू को चेक करेंगे, देखो अगर हम आपसे बोलते हैं T2 ट्रू किस पे है, सॉरी 12 पे, और फॉल्स किस पे है 13 पे, ये हमें क्लियर था, ये भी चीज क्लियर थी 14 पे। अब यहाँ की कंडीशंस की बात करें तो बैकपैच क्यों रिक्वायर्ड है, बैकपैच हमारे पास किस पार्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास ट्रू वैल्यूज है, राइट। सो ट्रू वैल्यू हमारे पास में किस नंबर पे है 12 है, तो 12 हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि रिजल्ट किसके लिए चेक कर रहे हैं, तो 12 के लिए, तो 12 हमने यहाँ पे यूज कर दिया। नाउ अब हमें पता है 13 पे फॉल्स है, तो 12 और 13 पे हमें ये पता है कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो नेक्स्ट आपके पास में क्वाड्रुपल क्या आएगा 14 आएगा, राइट। सो 14 आपके पास में नेक्स्ट क्वाड्रुपल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 12,14, राइट। सो नेक्स्ट क्वाड्रुपल का मीनिंग समझ में आया कि आपके पास में जो भी ट्रू कंडीशन है फॉल्स कंडीशन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रुपल जनरेट हो रहा है, तो वो क्वाड्रुपल 14 था। नाउ अब अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें तो ट्रू वैल्यू हमारे पास 12 एंड 14 है, लेकिन 12 ओवरलुक हो रहा है किसके थ्रू 14 के थ्रू, तो केवल ट्रू वैल्यू किस पे मिलेगी 14 पे मिलेगी, और फॉल्स वैल्यू किस पे मिलेगी 3 एंड 15 पे मिलेगी, राइट। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब अगर हम और के लिए इसी चीज को देखें तो और की टेबल देखते हैं आपके पास में, और की टेबल में हमारे पास में क्या है, अगर 1 1 है तो हमें पता है आउटपुट क्या होगा, लेकिन अगर 0 0 है तो हमारे पास में क्या है, आउटपुट डिपेंड करेगा T4 पे। सो T4 कौन सा था, ये वाला पार्ट, राइट। सो अब T4 की कंडीशन पे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को चेक करें, तो हमारे पास हमें फॉल्स वैल्यू के लिए चेक करना है, 0 का मतलब फॉल्स है, तो बैक पैचिंग में हमने क्या नंबर लिखा है 11, राइट। और इसके बाद T4 की कौन सी वैल्यू हमें चेक करनी है, ट्रू वैल्यू के लिए चेक करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 12, राइट। सो बैक पैच किस पे हुआ है 11 एंड 12 पे, राइट। अब नेक्स्ट क्वाड्रुपल हमारे पास क्या था 11 के बाद हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्वाड्रुपल 12 मिलेगा, तो हमारे पास में 11, 12